Hello student, I am MN Jha from Jha Academy of Physics and this is my first video to all of you. I expect you like this video. If you like this video, please share and subscribe my channel. I hope so. Today I am going to start the study about electric field. So before starting the study of electric field, firstly we all of you know about there are two types of charge. The first charge is source. The first charge is source charge, and the second charge is test charge. So what is source charge? Source charge is that charge. Source charge. Source charge. It is that charge which creates electric field. Source charge is that which creates electric field. And what is test charge? So about test charge we can say, it is infinitesimally small charge. It is infinitesimally small charge which is used to detect the electric field which is created by the source charge. So firstly, we all of you have to define this type of charges. So what is source charge and test charge? About source charge we can define, it is defined as the charge which creates electric field, and about test charge, we can define as the infinitesimally small charge which is used to detect the electric field, created by source charge. So firstly, we all of you know about these two types of charge. So source charge and test charge. Now we come back on electric field. What is electric field? Electric field to know about electric field, it is the region around a source charge. It is the region around a source charge where another charge, it means to say that another charge means to say that it is a kind of test charge, where another charge, that is test charge, experiences some forces, which is either attraction or repulsion. मतलब ये कहने का ये अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के अराउंड
एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है जिसमें जो अनदर चार्ज होता है या उसके बारे में, वो अनदर चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। जो अनदर चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, वो अपने आप पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, कोई भी फोर्स का वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रीजन, it is the reason around, it is the reason around a source charge where another charge, we can define that is test charge experience either force of attraction or force of repulsion, either force of attraction or repulsion। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज के अराउंड एक रीजन है, एक इलाका है जिसमें कोई दूसरा चार्ज, या हम यूं भी कह सकते हैं कोई एक टेस्ट चार्ज हो सकता है। जब वो टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन में जाता है, तो वो अपने आप पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, कोई भी एक फोर्स का वो एक्सपीरियंस करता है। So that is the electric field। अब इस बात को हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम लोग समझने आए हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम सीख रहे हैं, तो और भी डिटेल से थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसको समझें। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में और भी थोड़ा हम डिटेल करके समझ सकते हैं। सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज, सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज, ये एक सोर्स चार्ज, और एक पॉइंट हमने O मान लिया, और इस पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज, and from this point we consider about different points at different distance। मतलब इस पॉइंट से कुछ दूरी पर, अलग अलग दूरी पर अलग अलग पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। सपोज वी कैन कंसीडर द पॉइंट अबाउट A, पॉइंट अबाउट B and point about C। The A point is at a distance RA and the B point is at a distance RB and the C point is at a distance RC। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन हमको और भी बेहतर ढंग से समझना है, तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम और भी आए। अब हम क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं। नाउ वी कंसीडर Q विद अ टेस्ट चार्ज, और हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेते हैं Q जो है वो एक टेस्ट चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को, ये जो हमने डिफरेंट पॉइंट हमने एज्यूम किया है, इस टेस्ट चार्ज को हम अलग अलग पॉइंट्स पर रखेंगे। सपोज हमने इस टेस्ट चार्ज को पहले हमने C पॉइंट पर प्लेस कर दिया।
अब हमने आपको अभी बतलाया कि जब उस रीजन में हम किसी दूसरे चार्ज को अर्थात टेस्ट चार्ज को हम जब प्लेस करते हैं तो वो कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। सपोज दिस चार्ज इज पॉजिटिव, हमने इस चार्ज को हमने क्या माना, पॉजिटिव माना। अब ये चार्ज तो सोर्स है, ये टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब हमने टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अब यहां पर एक बात होती है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज भी हमने पॉजिटिव माना और टेस्ट चार्ज भी हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। सो दिस इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव एंड इट इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव। सो देयर मस्ट बी रिपल्सन बिटवीन। तो यहां पर क्या है कि इस चार्ज पर एक रिपल्सन का फोर्स एक्ट, और इस चार्ज पर जो रिपल्सन का फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू सोर्स चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स along this direction, along this is the force of repulsion, this is the force of repulsion, force of repulsion। सपोज हमने ऐसा लिया कि यहां पर जो इस पर फोर्स लगने वाला था कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है। सपोज वी कंसीडर, अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें, सपोज वी कंसीडर एट पॉइंट C द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज The electrostatic force is equal to 0। हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि C पॉइंट पर जो चार्ज है इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, there is no electrostatic force, that means we can say that it is equal to 0। यानी कि इस पॉइंट पर जो C पॉइंट पर हमने इस चार्ज को रखा है इस पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है। जब कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है इस चार्ज पर तो ये चार्ज उसी पॉइंट पर रहेगा, ये सी पॉइंट से डेविएट नहीं करेगा। डेविएट नहीं करेगा मतलब ये जो है इस साइड नहीं भागेगा, क्योंकि इस साइड मूव ही नहीं करेगा, ये जहां है वही रह जाएगा, इसमें कोई मूवमेंट आएगी ही नहीं। सो हम इससे पता नहीं कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है, क्योंकि जब तक ये अपने स्थान से डेविएट नहीं करता है, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो है इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इधर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो 0 है। सो वी कैन से दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो हम यहां कह सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, there is no electric field at C, यानी कि C पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बट जैसे ही हम इस चार्ज को इधर की ओर मूव करवाते हैं, मतलब इधर की ओर लाते हैं, when this charge, this Q charge is taken towards B, है ना, when the charge is taken towards B and put it on B, जब हम इस चार्ज को हम B पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है, तो इस पर फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होना शुरू होगा, उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, मतलब यहां पर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होने लगेगा। जब यहां पर फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होने लगा, अब सी पॉइंट पे थोड़ा हम मिटा देते हैं। अब जब ये बी पॉइंट पे आ गया तो
तो यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं है, बट एट पॉइंट बी देयर इज मतलब बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जीरो के इक्वल नहीं। जब वो जीरो के इक्वल नहीं है, इट मींस ये पार्टिकल इधर डेविएट हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। तो यहां पर क्या है कि ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब इस बी पॉइंट पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। जब इस बी पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट हो ही बी पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स जीरो के बराबर नहीं है। जब इस बी पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रहा है जो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो चार्ज आया है वो इधर की तरफ मूव करेगा along the direction of force. So we can say that if, हम ऐसा भी कह सकते हैं, if electrostatic force on B is not equal to zero, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, देन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर हम बी पॉइंट से इधर की तरफ, सपोज ये बी पॉइंट पर हमने लाया तो इस पर फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया। अब ये चार्ज को यदि हम बी पॉइंट से अंदर, या तो इस पॉइंट पर, 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 किसी भी पॉइंट पर यदि हम लाते हैं बी पॉइंट के इनसाइड में, मतलब इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट में यदि लाते हैं, तो डेफिनेटली है कि यह जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, वो अपने आप पर कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो हमको पता चल गया कि कहां पर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है, कहां पर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं मिल रहा है, ये तो मेरे को पता चल, इससे हम पता लगा सकते हैं। अब क्या है कि हमने देखा कि बी पॉइंट से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलना शुरू हो गया। सी पॉइंट पर जब था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं मिल रहा था, लेकिन बी पॉइंट पर जैसे ही आया इसमें डेविएशन शुरू हो गया, अर्थात मूवमेंट शुरू हो गया। और जब मूवमेंट शुरू हो गया तो हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट्स पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी डिटेल समझें। अब हम इसके रीजन की बात करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये जो O पॉइंट है, जो सोर्स चार्ज जहां पे रखा हुआ है, अगर इसको एक सेंटर हम मान लें, दिस इज कंसीडर्ड एज अ सेंटर एंड द डिस्टेंस OB इज टेकन एज रेडियस, मतलब ये जो OB जो डिस्टेंस है, अगर इसको रेडियस मान के चले तो, और इसको सेंटर माने, इसको रेडियस मान लें, तो एक सर्कल यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज कॉल्ड ए सर्कल। अब ये सर्कल क्या डिफाइन कर रहा है? ये सर्कल ये डिफाइन करता है, ये एक स्पेस डिफाइन करता है। ये सर्कल किसके अराउंड? ये एक स्पेस को डिफाइन करता है, किसके अराउंड? सोर्स चार्ज के अराउंड, नॉट टेस्ट चार्ज के अराउंड। मतलब ये स्पेस एक रीजन डिफाइन करता है, एक स्पेस डिफाइन करता है, जहां, जिसमें, या इसमें, इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर यदि हम इस टेस्ट चार्ज को हम प्लेस करें तो वो अपने आप पर कुछ फोर्स का अनुभव करेगा, मतलब एक्सपीरियंस करेगा। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। अब तो बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कह सकते हैं, इट इज द रीजन अराउंड ए सोर्स चार्ज
where another charge, that is this charge, experience some force of attraction or repulsion. So this is called electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो तीन पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अब इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसके की पॉइंट्स को थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity, and second its unit is Newton per coulomb or volt per meter, and the third is electric field को हम कैसे फाइंड करेंगे, and the third is defined, the electric field is given by force upon test charge। कौन सा चार्ज रखेंगे, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये तीन पॉइंट्स हमने आपको की पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, और या तो इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो आज के लिए ये वीडियो हम इतना ही बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो कल हम अपलोड करेंगे और कल और भी बेहतर समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश ही रहेगी। ओके, दैट्स ऑल, गुड नाइट।